Hi student, I hope you have already understood by seeing the thumbnail that today's presentation is all about ancient Nalanda University, which is also known as Nalanda Mahavihar. I like to give this presentation both English and Hindi so that those who can understand English, they can enjoy it, as well as if your mother tongue is Hindi, then also you can enjoy it. I like to mix these two language, so there can be little bit trouble. Please excuse me. जो लोग हिंदी समझते हैं उसके लिए भी ये आसान होगा, जो लोग इंग्लिश समझते हैं उसके लिए भी आसान होगा. सो बिना समय बर्बाद करते हुए डुबकी लगाते इतिहास की उस पन्नों पर जहां से हम लोगों को ज्ञान का रोशनी मिलने वाला है. सो लेट अस स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. इंट्रोडक्शन. Nalanda University does not require introductions, but still I need to say something about it. The picture that you can see is the artistic impression of site number 3. I hope you all have seen this picture in your history book. Nalanda is also known as Nalanda Mahavihar. It is actually the ruins of Buddhist establishment. It was a spectacular residential and monastic university of that time. It is situated in the state of Bihar, district Nalanda. नालंदा यूनिवर्सिटी हम सब लोग जानते हैं कि बिहार स्टेट में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है. ये एक रुइंस है, पर फिर भी इसमें से हम लोग को बहुत कुछ जानने का मिलेगा. क्रिएटेड एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, once housed 2000 teachers and 10,000 students, but it is at its peak only. This university provided education for nearly 700 years, but this number of students and teachers was there at the time of Hiuen Tsang visit, not throughout this tenure of 700 years. यहाँ हम दिखा रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक समय, जिस समय ह्यूएन त्सांग यहाँ विजिट किया था, उसी समय इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग 10,000 के बराबर था और टीचर 2,000 के बराबर. पर ये जो संख्या दिखाया गया, ये पूरा टेन्योर के नहीं है, सिर्फ कुछ समय के लिए ऐसा सिचुएशन था. That means at its best. Location, where the university is located. In the backdrop, you can see the aerial view of archaeological site of Nalanda. Now, where it is situated. ये नालंदा यूनिवर्सिटी का पिक्चर है, जो एरियल व्यू है. नालंदा यूनिवर्सिटी एक्चुअली कहाँ सिचुएटेड है, कैसे हम लोग वहां पहुंच सकते हैं. सो दिस यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली 90 किलोमीटर फ्रॉम पटना and just 16 kilometers from Rajgir, and the nearest railway station is just 2 kilometers, which is known as Nalanda railway station. How this place is related with Buddha. भगवान बुद्ध के साथ इस प्लेस का क्या रिलेशन है. भगवान बुद्ध यहाँ आते थे. This place, as disclosed in Pali literature and Chinese literature, the name Nalanda is associated with its mango grove donated by some businessman to Lord Buddha as a halting place, and it was known as Pavarika. नालंदा का इसी जो जगह है, जो यूनिवर्सिटी साइट है, एक समय यहाँ एक मैंगो यानी आम का बगीचा हुआ करता था. भगवान बुद्ध जब भी इस रास्ते से जाते थे, तभी इस आम का बगीचा में रेस्ट किया करते थे. इस आम का बगीचा का नाम था पवरिका. और भी एक कारण है, इसका नजदीक एक गांव है जहां उसका एक स्टूडेंट सारिपुत्र का घर था. शायद उसी कारण भी भगवान बुद्ध यहां आते थे. Whenever Lord Buddha passes through this way, together with a great company of monks, he stays here in this mango grove. It was the birthplace of Sariputra as the one of his disciple. Origin of name. इसका नाम नालंदा क्यों पड़ा, इसके बारे में ह्यूएन त्सांग दो स्टोरी बता रहे. वो माइथोलॉजिकल है, पौराणिक है. अबाउट द नेम नालंदा, Xuanzang is the Chinese name of Huyen Tsang, recorded two legendary tales. What are those two tales? It was named after a naga reside in the tank of the mango grove. So there was a water body or a tank. A naga or the snake used to stay here. So from the name Naga, Nalanda originate. Or it can be another
because of another story. Lord Buddha ruled this place in his earlier life. Lord Buddha ruled this place and his generosity earned the name Nalanda or charity without intervention. ये सोचा जा रहा है कि भगवान बुद्ध उसका पिछले जन्म में एक राजा हुआ करता था इसी जगह का, उसी समय एज अ किंग लोगों को उसने सेवा किया, इसी जन्म में फिर भी वो सेवा कर रहा है, एज इफ वो सेवा ही करते जा रहा है. फ्रॉम दिस नेम चैरिटी विदाउट इंटरवेंशन से नालंदा नाम को लिया गया है. फाउंडर ऑफ नालंदा महाविहार, किसने इस यूनिवर्सिटी का स्थापन किया? अकॉर्डिंग टू तरंथा, he was a lama of Jonang schools of Tibetan Buddhism, a remarkable scholar of Buddhism. Let me say you a little bit about him. His writing is also considered as a historic text. That means we can accept it as a historic text. Ashok, the great Mauryan emperor of 3rd century BC, gave offering to the Chaityas of Sariputra and erected a temple here. So 3rd century BC में सम्राट अशोक सारिपुत्र का नाम से एक चैत्य यानी मंदिर जैसा बनाया और उसमें वो ऑफरिंग किया. सो ये एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नालंदा बट नॉट द यूनिवर्सिटी. दैट टाइम इट वाज जस्ट अ चैत्य, मीन्स एक मंदिर. हाउएवर नागार्जुना, द फेमस महायाना फिलोसोफर ऑफ 2nd century AD, बहुत साल बाद 2nd century AD, begin his studies at Nalanda and later on become the high priest. अगर पढ़ाई का दृष्टि से देखा जाए या ना यूनिवर्सिटी का दृष्टि से देखा जाए, सो पहला जो आदमी यहाँ पढ़ाई का मामले में इन्वॉल्व हुआ वो उसका नाम था नागार्जुना, एक महायाना बुद्धिस्ट थे. उसने यहाँ स्टडी करना शुरू किया, उसके बाद पढ़ाना भी शुरू किया एज अ प्रिस्ट. सो अकॉर्डिंग टू ज़ुएंज़ांग और ह्यूएनसांग, द लेजेंडरी चाइनीज ट्रेवलर हुज ट्रेवलॉजी मीन्स द ट्रैवल डायरी is always a major source of knowledge of the historian, referred Shakraditya, who is Kumaragupta I, as a founder of ancient Mahavihar. Even Archaeological Survey of India accepted this. ह्यूएनसांग का मुताबिक शक्रादित्य नाम का एक राजा था जिसने पहली बार नालंदा यूनिवर्सिटी को फाइनेंसिंग करना शुरू किया, यानी रॉयल पैट्रोनेज देना शुरू किया, गिफ्ट देना शुरू किया, रुपया देना शुरू किया. सो पहली बार अगर देखा जाए कोई राजा इसमें फंडिंग करना शुरू किया, यूनिवर्सिटी बनाने में मदद करना शुरू किया, वो था शक्रादित्य और कुमारगुप्ता I. इसी सिलसिले में कुमारगुप्ता I को ह्यूएनसांग माना है ये असली फाउंडर है. सो उसी हिसाब से आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वही मानते हैं कि कुमारगुप्ता I इज द रियल फाउंडर ऑफ नालंदा महाविहार. डिस्कवरी ऑफ नालंदा महाविहार, इसको डिस्कवर कैसे किया गया? द साइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर डायरेक्टेड बाय सर फ्रांसिस बेकनम हैमिल्टन, a Scottish surgeon serving the site in 1811 to 1812. ये कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, एक सर्जन थे, स्कॉटिश सर्जन. किसी कारणवश उसी जगह को सर्वे कर रहे थे, बट विलेजर वहां का जो गांव वाले उसको इन्फॉर्म किया यहाँ एक माउंट ऑफ ब्रिक है, कुछ है. उसने वो जगह को स्पॉट किया बट नॉट द नालंदा यूनिवर्सिटी. He, however, did not associate the mound of bricks as Nalanda University. That means Sir Francis Beckenham Hamilton spotted that area, but he has no idea about Nalanda University that time. Then who established that link? The link was established by Markham Kitto in 1847. Markham Kitto is an army officer, but he has a great interest of Indian archaeological site. He visited various Buddhist archaeological site. He draw picture of this archaeological site. So he actually established the link. He actually pinpoint that this is the place of Nalanda University in 1847. मार्कहम किट्टो नाम का एक आर्मी ऑफिसर हुआ करता था उस जमाने में. ये कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स यानी आर्कियोलॉजिकल साइट का ऊपर उसका इंटरेस्ट था. वो विजिट करते थे हर जगह और उसका तस्वीर बनाते थे. यही आदमी मार्कहम किट्टो इस जगह को नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ रिलेट किया. मीन्स वो एक्चुअल फाउंडर है. वो पता चला कि ये साइट हो सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी है. उसी जमाने का दो फोटो है. इट इज द वेरी फर्स्ट इमेज ऑफ द साइट ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी.
maybe just after the excavation, but more or less of the same time when when they actually spotted this mound of brick. This is, you can see it is just a mound of brick, nothing is there. Now, after that, Alexander Cunningham, you know this name, he is also regarded as the father of Archaeological Survey of India. Alexander Cunningham started official survey from the year 1861 to 1862. The site was systematically excavated and consolidated by Archaeological Survey of India 1915 to 1937, again after independence 1974 to 1982. अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको हम मानते कि वो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का फाउंडर मेंबर है, इसने पहली बार 1861 से 1862 इस समय सर्वे शुरू किया। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके 1915 से 1937, अगेन 1974 से 1982 इस समय एक्सकेवेशन शुरू किया। एक्सकेवेशन चल रहा है। इस फर्स्ट बैच ऑफ एक्सकेवेशन का 2 फोटो है, ये फोटो हम दिखा रहे हो। द पिक्चर दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज द पिक्चर ऑफ द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ नालंदा महाविहार। Remains of Nalanda University at present. So, what is there at present? Let me tell you here, whatever we can see at present is not the actual university of that time. This is just the archaeological site. Now, the place that I have marked, or I am marking at this moment, this is the area as well as this area. They are called Bihara or monastic site. This is actually used for educational as well as residential purpose for both the teachers and the student. Teachers and student get equal facility. This inside that you can see a courtyard in the center of all these classroom. This is actually the classroom, and classrooms are surrounded by small room which is called cell used for residential purpose as well as for meditation purpose. Other than this, in this picture, you can see these 2 mount. This is actually Chaityas or the temple. Along with that, famous site number 3. This is site number 3 or the Shariputra Stupa. आप लोग जिस एरिया को देख रहे हैं, मैं दोबारा उसको मार्क कर रहा हूं। पहले देखिए, दोबारा मैं मार्क कर रहा हूं। ये जो इलाका है, ये है बिहारा या मोनेस्टिक साइट है। ये इलाका क्लासरूम की तरह या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरह यूज होता था। उसके साथ साथ हम लोग और भी 2 मंदिर देख रहे हैं जिसे चैत्यस कहते हैं। दीज आर द 2 चैत्यस, मंदिर टाइप का चीज है। और एक चीज है जो सबसे फेमस है, सबसे वेल प्रिजर्व्ड है, यह है साइट नंबर 3। साइट नंबर 3 यानी सारीपुत्र स्तूपा, जिसका इमेज हम लोग हिस्ट्री बुक में देखते हैं। नाउ दिस इज द एक्चुअल साइट और द आर्कियोलॉजिकल साइट। How big it is? It is spread over 14 acres with a ruins of 11 biharas and 5 chaityas. I have shown you only 2 chaityas. There are 5 chaityas, which was archaeologically numbered. Apart from these 2 archaeological number monasteries, 1A and 1B, which face northward, Nalanda Archaeological Site is also received UNESCO World Heritage status in 15 July 2016. So, नालंदा आर्कियोलॉजिकल साइट जो अभी मौजूद है वो 14 हेक्टर्स लैंड के ऊपर स्प्रेड है। उसमें 11 बिहारास है, 5 चैत्यस है। इसके साथ साथ 2 और भी मोनेस्ट्रीज है जिसका नंबर है 1A एंड 1B। नालंदा यूनिवर्सिटी साइट 15 जुलाई 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है। Remains of Nalanda University at present. These are some of the picture as well as drawing. On the left hand side, you can see the drawing of site number 3 or Sariputra Stupa. On the right hand side, the actual Sariputra Stupa, which is at the 7th stage of constructions. What does it mean? This is a huge solid structures in the middle of the court surrounded by the number of vaulted stupa. It was found that the latter temple built over the remains of the earlier one. This means once a dynasty come, build something over the previous one. In this way, a steps construction
undertook it, and at this moment we can see only the seventh stage. The present mound is the result of seven successive accumulation, but excavation cannot be done further. If we can break it and try to find out what is there inside it, then we may get a structure that you can see on the left hand side, which is the artistic impressions. At present we can see the structure which is there on the right hand side. Now let me show you some of the pictures of the remains of Nalanda University at present. This is the picture of a classroom that you can see on from top. Here let me mark something for you which will be easy for you to understand. This is the teacher desk or the teacher dais where the teacher used to sit. This is a well where from they can drink water, which is octagonal in shape, symbolize eightfold path of Buddhism. All this small room can accommodate only one person. It may be used for residential place, or it may be used for meditation purpose. Other than this, I have some other pictures such as this one. This is also the same department taken from the side. ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये एक क्लासरूम का पिक्चर है. पहले मार्क कर रहा हूं. ये जो इलाका है ये छोटा सा डेस्क टीचर का बैठने का जगह है क्लासरूम में. उसकी दाएं तरफ एक कुआं है जिसका शेप इज 8 कॉर्नर शेप और 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म को दिखाने के लिए है. पीछे आप चारों तरफ इतना छोटा छोटा रूम देख रहे हैं जिसको आइदर रहने के लिए या मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल होता था. वही पिक्चर आप साइड से देख रहे हैं या अनदर पिक्चर है, वो साइड व्यू है. दिस इज द पिक्चर ऑफ बरांडा और यू कैन से पाथवेज. इस नाउ यू कैन ऑल्सो सी द स्टोन पिलर which is used to support the ceiling. It proves that the department or this study room are not of single floor. They are multi-floor department. On the right hand side, this picture you can see is the picture of a hostel or a bedroom, you can say 2 bedroom for the 2 student. ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, पहला पिक्चर जो बाएं तरफ है उसमें एक पाथवेज दिखाया जा रहा है. स्टोन पिलर का बेस भी आप क्लियरली देख सकते हैं. ये स्टोन पिलर उसका ऊपर का सीलिंग को सपोर्ट करने के लिए है. तो इससे पता चलता है कि डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही फ्लोर का नहीं है, उसका ऊपर एक के बाद फ्लोर हुआ करता था. उस फ्लोर को सपोर्ट करने के लिए ये जो स्टोन पिलर बनाया गया. बाएं तरफ उसका सेल को दिखाई दे रहा है. राइट हैंड साइड दाएं तरफ जो पिक्चर है 2 बेडरूम टाइप का दिखाई दे रहा है. दिस इज द प्लेस फॉर 2 स्टूडेंट टू स्टे. This is a staircase where you can see a big staircase. One is side view, another is a front view. This staircase prove the departments are of multi-floor. So student use this staircase to go up. ये सीढ़ियां दिख रहे हैं, एक पूरा बड़ा सा सीढ़िया जैसे आज का यूनिवर्सिटी में हुआ करता है. उसी तरह इसे यह प्रमाण मिलता है कि ये जो डिपार्टमेंट है और बिहाराज है ये एक ही फ्लोर का नहीं है, एक के ऊपर एक बहुत सारा फ्लोर हुआ करता था. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये पिक्चर कोई पढ़ाई का रूम नहीं है, स्टडी रूम नहीं है. ये पिक्चर है एक वाल्टिव स्तूपा और छोटा बहुत बुद्धिस्ट स्टैचूज है. नाउ व्हाई इट इज बिल्ड? Now the question is, in those days the student come from far up countries such as Sri Lanka, China, Japan, Indonesia. Now if a student or a teacher died here, what happened? Their body cannot be returned. So they cremate their body and in his memory they built all this Valtiv Stupa. यहाँ जो स्टूडेंट आया करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग जानते कि दूर दूर से स्टूडेंट आता था, श्रीलंका से, चाइना से, म्यांमार से, दूर दूर से स्टूडेंट आता था. जब स्टूडेंट अगर किसी कारण या उसका मौत हो जाता है, उसका बॉडी को अपना देश में वापस भेजना संभव नहीं था उस जमाने में, तो उसका बॉडी को यहाँ क्रिमेट करके उसके लिए एक मेमोरियल बनाया जाता था जिसे वाल्टिव स्तूपा कहते हैं. बाएं तरफ दिखाई दे रहा है, दाएं तरफ जो दिखाई दे रहा है पिक्चर वो छोटा मिनिएचर पिक्चर ऑफ लॉर्ड बुद्धा. पहले जो टॉप में जो बुद्धा का पिक्चर आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में वो है ध्यान मुद्रा. नेक्स्ट इज मध्यम मार्गी बुद्धा एंड द लास्ट वन इज भूमि स्पर्श मुद्रा, मतलब
तीन स्टाइल में बुद्धिस्ट इमेज को दिखाया जा रहा है. Now, this is the most important part of our presentation is related to Yuansheng. We all know Yuansheng as a traveler, but Yuansheng came here as a student, joined the Nalanda University as a student. Thereafter, he became a teacher, and thereafter, he got a name called Makshadeva. हम लोग ह्यूएनसांग को सब लोग जानते हैं. ये पिक्चर हमारा हिस्ट्री बुक में है. हम जानते कि वो चाइना से यहाँ आए थे क्यों? पढ़ने के लिए. उसके बाद टीचर भी बना. उसके बाद उसका एक नया नाम भी दिया गया. नाम था मक्षदेवा. ह्यूएनसांग का ट्रेवलोलॉजी और ट्रेवल डायरी बहुत हेल्प किया है हिस्टोरियन को नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए. Yuansheng came to India at the time of Harshavardhan of Kannauj, who ruled India from 606 to 647 AD. Yuansheng saw here 80 feet high copper image of Buddha. Yuansheng जिस समय आया है उस समय है 606 या 646 AD. ये हर्षवर्धन का टेन्योर है, उसी समय आया था. अब कोई बोलता है कि 632 या 42 इसी बीच वो इंडिया पहुंचा था. जब उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आया था उसी समय उसका ट्रेवलोलॉजी में वो लिख रहा है कि उसने एक ऐसा इमेज देखा बुद्धा का, वो 80 फीट हाई कॉपर इमेज उसने देखा था, जो आज हम लोग देख नहीं सकते. वो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है. नाउ किंग हर्षवर्धन remitted the revenues. What Yuansheng has written about King Harshavardhan. King Harshavardhan remitted the revenues of 100 villages as an endowment to the convent. 200 households in these villages contributed the required amount of rice, butter and milk. Hence, he had the students were being abundantly supplied, do not require to ask for anything. एक भयंकर सच जो ह्यूएनसांग लिख रहा है कि हर्षवर्धन के बारे में. किंग हर्षवर्धन 100 यानी 100 गांव का जो टैक्स कलेक्ट होता था वो पूरा यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दिया. इसके साथ साथ उसी गांव में रहने वाले ऐसा 100 घर को चुना गया था जो लोग चावल, मक्खन और दूध डेली यूनिवर्सिटी को भेजते थे. इसके साथ साथ ह्यूएनसांग ये भी ऐड किया है कि इतना कुछ दिया गया है, स्टूडेंट को मांगने का कोई जगह नहीं छोड़ा. सो स्टूडेंट को करना क्या है? सिर्फ पढ़ाई. Study throughout the day. In those days, there was no such period system. Period 1, period 2, not that. Throughout the day, you can study. Wonderful. So, this was the system of that time. ह्यूएनसांग और क्या लिख रहा है? क्या क्या चीज पढ़ाया जाता है? The course of study mentioned by the ह्यूएनसांग include the scripture of Mahayana and Hinayana text, Hetu Vidya known as logic, Sabda Vidya known as grammar, Chikitsa Vidya known as medicine, and Brahmanical text as Veda including Atharva Veda. ह्यूएनसांग मेंशन कर रहा है कि यहाँ महायाना और हिनायना बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ाया जाता है. हेतु विद्या यानी लॉजिक के बारे में पढ़ाया जाता है. शब्द विद्या यानी ग्रामर के बारे में पढ़ाया जाता था. चिकित्सा विद्या जस्ट लाइक मेडिकल साइंस ऑफ टुडे, मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता. ब्राह्मणिकल टेक्स्ट वेदा अथर्व वेदा भी बारे में. दैट मीन्स नॉट ओनली बुद्धिस्ट टेक्स्ट बट हिंदूज टेक्स्ट वर ऑल्सो देयर, प्रेजेंट देयर. सो यहाँ कोई धर्म का भेदभाव नहीं है. बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी पढ़ाया जाता था, हिंदू टेक्स्ट भी पढ़ाया जाता है. उसके साथ साथ चिकित्सा विद्या, ग्रामर, हेतु विद्या, लॉजिक सब कुछ पढ़ाया जाता है. ह्यूएनसांग अपना टीचर के बारे में क्या बोल रहा है? दिस इज अनदर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन अबाउट द टीचर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. This is probably the nucleus of success of Nalanda University, the reason of success of Nalanda University. Now see what he said about the teacher. He wrote, the priest or the teacher to the number of several thousands are the man of highest ability and talent. Now see how he quote highest ability and talent. Their distinction is very great in present time, and there are many hundred whose fame has rapidly spread through distant region. Their conduct is pure and unblameable. ह्यूएनसांग बता रहा है कि उनका जो टीचर हुआ करता था वो हाईएस्ट क्वालिटी का टीचर है, इसमें कोई संदेह नहीं है. हाईएस्ट क्वालिटी. उसका जो नाम है, उसका जो पहचान है वो सारा दुनिया में स्प्रेड हो गया है. और सबसे बड़ा बात है जो लास्ट सेंटेंस में ह्यूएनसांग कहा है, उसका कंडक्ट इज प्योर एंड अनब्लेमेबल. टुडे इन मॉडर्न इंडिया इट इज वेरी डिफिकल्ट. द टीचर
डिसिप्लिन टीचर्स कंडक्ट इज ऑल्सो वेरी प्योर एंड अनब्लेमेबल। उसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता, उसका रहन सहन और उसका एक्टिविटी के ऊपर। So that is the reason of Nalanda's success. That is the core cause of how Nalanda University provide education free of cost for nearly 700 years. Discipline. We are coming to that point, discipline. Hivanshan described the rules of convent. जैसे हमारा स्कूल कॉलेज में कोई रूल्स होता है, उसमें भी रूल्स था। हिवनशंग रूल्स के बारे में क्या बोल रहा है? द रूल्स ऑफ द कॉन्वेंट्स आर सीवियर एंड ऑल द प्रीस्ट आर बाउट टू ऑब्जर्व देम। द कंट्री ऑफ इंडिया रेस्पेक्ट देम एंड फॉलो देम। द डे इज नॉट सफिशिएंट फॉर आस्किंग द आंसरिंग ऑफ प्रोफाउंड क्वेश्चन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। दे एंगेज इन डिस्कशन, ओल्ड एंड यंग mutually help one another. This cannot be discuss the question. Those who cannot discuss the question out of Tripatak means class, इसने बोल रहा कि जो प्रिस्ट ऐसे तो हाई क्वालिटी का है, उसको सभी को हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन भी फॉलो करना है। एक दिन में सारा क्वेश्चन आंसर पता चले ऐसा हो ही नहीं सकता। सारा दिन डिस्कशन करने के बाद भी, जैसे हमने बताया, उसमें कोई क्लासेस नहीं था। दैट मीन्स फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड ऐसा नहीं था। जो सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ाई करें वो सारा दिन पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा। इसी तरह का स्टाइल है उस समय का टीचिंग में। फ्रॉम मॉर्निंग टिल टू एंड, यानी सुबह से शाम तक आप डिस्कशन करते रहो, पढ़ाई करते रहो। आपका व्यू पॉइंट दूसरे के सामने रखना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई ठीक ठाक कर रहे, आपका व्यू पॉइंट उसी सब्जेक्ट मैटर में रख पा रहे तो ठीक है, नहीं तो यू आर आउट ऑफ द त्रिपटक, क्लास से बाहर। दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी एंड एक्सप्रेस। आपको पढ़ना भी है, आपको समझाना भी है, लेसन दूसरों को बताना है आप क्या समझे, उसका कारण क्या है। दिस वॉज द स्टाइल ऑफ टीचिंग ऑफ दोज डेज। नीचे जो पिक्चर दिखाया जा रहा है वो एक एआई जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड पिक्चर, वो सच नहीं है, पर उसको ऐसी तरह बनाया गया जैसे शायद नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसे ही था। मेरा जो पिक्चर पहले दिखाया उसी के साथ थोड़ा बहुत रिसेंबल होता है। Hiwensung described the condition to enter the class. Another fascinating and unique feature. If a man of other quarter desired to enter and take part in the discussion, the keepers of the gate proposes some hard question. Many are unable to answer. See the quality of gatekeeper. Even the gatekeeper is so qualified. Gatekeeper can be used to scan the student who can enter the class or who cannot enter the class. One must study deeply both old and the new book before getting admission. Those who fail compared to those who succeed as 7 or 8 to 10. हिवनशंग यहां बताया जा रहा है कि द्वारपाल यानी गेट कीपर वो भी एक पूरा एडुकेटेड है। इतना ही एडुकेटेड है कि उसको स्टूडेंट को स्कैन करने का अधिकार है। दैट मीन्स कौन अंदर जा सकता, टीचर का लेक्चर सुनने लायक है कौन, इसको पता करने के लिए गेट कीपर ही काफी है। इससे यह भी पता चलता है कि यूनिवर्सिटी का भीतर का माहौल कैसा था, यानी ज्ञान का माहौल कैसा था। गेट कीपर ने क्वेश्चन करेगा, अगर लगभग सही आंसर मिलेगा, क्योंकि गेट कीपर को पता करना है कि स्टूडेंट जो क्लासरूम या डिपार्टमेंट में घुसना चाहता है उसका स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो लेक्चर समझ पाएगा। इसको जांच करने के लिए गेट कीपर को यूज किया जा रहा है। दोज हु फेल्ड कंपेयर टू दोज हु सक्सेस, इसमें बताया जा रहा है कितना परसेंटेज यानी रेशियो कितना हो सकता है, 7 और 8 to 10। दोज हु फेल देयर नंबर इज 7 और 8 आउट ऑफ 10, यानी 10 के भीतर 7 स्टूडेंट ऐसा है शायद उसको एडमिशन नहीं मिलेगा क्लास में घुसने का। पढ़ाई करो अच्छी तरह से, तब उस गेटकीपर को फेस करो। दिस पिक्चर आई टुक इट। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोबेबली गेटकीपर यूज्ड टू स्टैंड हियर। ये जो पिक्चर है आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस है, यानी क्लासरूम में घुसने का, शायद गेटकीपर यहीं खड़ा होता होगा। क्लासरूम एंट्रेंस। दाहिने तरफ जो पिक्चर आपने पहले भी देख चुके, दाहिने तरफ जो पिक्चर है ये क्लासरूम इनसाइड व्यू है। टीचर सिटिंग प्लेस और डायस आप देख सकते हैं, उसके साइड में राइट हैंड साइड में उसका ऑक्टागोनल शेप वेल भी देख सकते हैं, चारों तरफ छोटा छोटा रूम जिसको हम सेल कहते हैं। दिस इज द इंटरनल व्यू ऑफ द क्लासरूम। सो दिस इज व्हाट
we can see from inside as well as outside the classroom. Library of Nalanda is another unique thing. Library not only unique but very very important. नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है. तो देखते हैं उसका लाइब्रेरी कैसा हुआ करता था. इसके बीच ये चीज भी जानना है, उसी जमाने में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो कैसे ये लोग कितना बढ़िया लाइब्रेरी मेंटेन करते थे. From the Tibetan historical account, we come to know about the big and rich library was housed in a 3 building located at a part of a campus called Dharmaganj. ये यूनिवर्सिटी कैंपस का भीतर एक ऐसा जगह था जिसका नाम था धर्मगंज. वो जगह कहां है ये आर्कियोलॉजिस्ट को अभी भी पता नहीं चला. सो एक जगह हुआ करता था, एक प्लेस हुआ करता था, यूनिवर्सिटी कैंपस, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस था. उसके भीतर धर्मगंज हुआ 3 लाइब्रेरी था. रत्नादधि, सी ऑफ ज्वेल, रत्ना सागर, ओशन ऑफ ज्वेल, रत्ना रंजक, ज्वेल अबॉन्डेंट. देखो तीनों में से एक चीज कॉमन है, वो है ज्वेल यानी रत्ना. सो हियर बुक इज द ज्वेल. Book plays a vital role. How they maintain such a big 3 library. Right hand side you can see a picture. Again it is AI generated picture, not the real picture. दाएं तरफ जो तस्वीर अपने देख रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेट किया गया एक पिक्चर है. शायद ऐसा ही कुछ था पर ये सही नहीं है क्योंकि धर्मगंज कहां है उसका भी कोई ट्रेस ही नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गया समय के साथ साथ. ये भी एक एआई जनरेटेड पिक्चर अब देख रहे हैं. नाउ इसमें बताया जा रहा है कैसे इतना बुक बना. Huan Sung specified the collection consist of philosophical and religious text. इसमें बहुत सारा philosophical text, religious text हुआ करता था. Copying of book. Now this is the important part. Copying of the book was a part of study and regarded as a religious act. Student had to prepare the reading material of copying from Sutra and Shastra. That means student has to prepare his reading material. That means student जो है उसको अपना जो किताब है वो खुद बनाना पड़ेगा. कैसे बनाएगा? प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो पुराना किताब तो है ना, वहां से कॉपी करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अपने लिए. तो ऐसे में क्या होता है, तो एक किताब नया बन जाता है. तो जैसे किताब बन जाता है पुराना पूरा कंप्लीट हो जाए उसको फिर लाइब्रेरी में रख दो. सो एक ही किताब का बहुत सारा कॉपी उसमें मौजूद था क्योंकि स्टूडेंट लिखते थे. ये लिखना जो है, कॉपी करना है, ये पढ़ाई का एक स्टाइल भी है और एक मेडिटेशन का बस स्टाइल भी है. ये तुम पर भी आप कोई भी स्टूडेंट अपने आप पर भी लागू कर सकते हो. इफ यू राइट समथिंग, पढ़ने के बाद अगर तुम उसको लिखोगे उसमें ध्यान ज्यादा जाता है, कंसंट्रेशन ज्यादा जाता है. उन लोगों को ये पता था, इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक मेडिटेशन का फॉर्मूला अपनाया. वो मेडिटेशन क्या है? जस्ट किताब को देखो, लिखो, लिखने के समय तुमको तो पढ़ना ही पड़ेगा. तो इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ स्टडिंग एज वेल एज प्रिपेयरिंग ओन स्टडी मटेरियल. Decline of Nalanda. This is the last phase of our presentation. This is the tragic phase of our presentation. नालंदा यूनिवर्सिटी का अंत कैसे हुआ? जैसे कोई भी सिविलाइजेशन बना है, बिगड़ा है. इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी तो उसका नाम थोड़ा सा बदल दिया गया, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या चाइनीज सिविलाइजेशन, जो भी सिविलाइजेशन था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी था, वो बना है आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय. उसका डिस्ट्रक्शन होना ही है, ये हिस्टोरिक पैटर्न है. तो नालंदा का डिस्ट्रॉय होने का कारण क्या है? एक पिक्चर आप देख सकते हैं, ये ड्राइंग है. अच्छी तरह से देखोगे कुछ टार्किश सोल्जर कुछ पढ़ने का कोशिश कर रहा है और एक आदमी, इंसान जो देख रहे हो, कुछ किताब जैसा कुछ हाथ में लेके खड़ा है. दैट मीन्स टार्किश पीपल इन्वेडेड नालंदा यूनिवर्सिटी. टार्किश पीपल बोले तो बख्तियार खिलजी का एक इन्वेशन हुआ था. इसके बारे में बहुत सारा चीज प्रचलित है. कितना सच है, कितना झूठ, यह हम देखेंगे कैसे. नाउ इट इज सेड दैट द बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी. It is said that Bakhtiyar Khilji destroyed Nalanda Mahabihar and the library continued to burn for months. Is it the only cause or the real cause? How much is truth behind it?
and how much myth behind it. ऐसा हम लोग जानते हैं, लोग बोलते हैं कि बख्तियार खिलजी ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत सारे मॉन्क को मार डाला, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को आग लगा दिया जो कई महीनों से जला था, उसके बाद पूरा बर्न हो गया। कितना सच है? देखिए कितना सच है ये हम बोलने के लिए उसी समय में क्या क्या चीज घटा था, दैट मीन्स ऑल द हिस्टोरिक डेवलपमेंट, उसी को पहले हम लोग देखेंगे। हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन में नहीं पढ़ेंगे कौन इसके लिए जिम्मेदार है, हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज हुआ था उस समय, तब हम लोग को कुछ पता चलेगा कितना इसमें सच है कितना मिथ है। डिक्लाइन, फर्स्ट पॉइंट। Tibetan monk Tarantha stated that Turk conquered the whole of Magadh and destroyed many monasteries at Nalanda, and they did much damage, and the monk fled abroad. He did not specify the name of invader. Tarantha एक टिबेटियन हिस्टोरियन है उसी जमाने का, उसने लिख रहा है उसी समय क्या हुआ है, दिखा रहा है कि टर्किश लोग ने नालंदा में बहुत सारे मोनेस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया ना, बहुत सारे कहां से आ गया, ऐसे हुआ क्या, नालंदा का अंत में बहुत सारे उसी तरह का स्टैंडर्ड का मोनेस्ट्री बनना शुरू हो गया था, जिसमें विक्रमशिला भी शामिल है और भी है। सो ये सब मोनेस्ट्री को वो डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, बहुत सारे मॉन्क को मारा, बहुत सारे भाग भी गया। बट तरंथा ने कोई इन्वेडर का नाम नहीं मेंशन किया। कौन क्या? ये मगध को कब कॉन्कर किया? टर्किश ने। यस, बख्तियार खिलजी इज अ टर्किश सोल्जर, ही वाज इन चार्ज ऑफ द टर्किश आर्मी, ठीक है, पर उसने मेंशन नहीं किया। पॉइंट को नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, नेक्स्ट घटना क्या हुआ? Around 1190, Turkish invader Ikhtiar Khilji, the son of Bakhtiar Khilji, invaded this area. 1199. Around 1236 AD, 200 Turk soldiers stationed at Bihar Sharif. Bihar Sharif is a town in Bihar. A garrison of soldiers was set up at the place, which generally turned into a set of administration. तो वो लोग बिहार शरीफ में 1236 में एक छोटा सा सोल्जर का 200 सोल्जर का एक कैंप बनाया, आहिस्ता आहिस्ता उसको उसका अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाना शुरू किया। इतना तक मेंशन है उसका, उस समय का डायरी में, उस समय का जो टिबेटियन टेक्स्ट है उसमें से पता चल रहा है। मुस्लिम हिस्टोरियन मिनहज, उसी जमाना का एक मुस्लिम हिस्टोरियन था फेमस, जिसका राइटिंग भी हम लोग हिस्टोरिक टेक्स्ट हिसाब मान सकते हैं। मिनहज wrote that Ikhtiar Khilji destroyed a city in the west of Bihar which was found to be a place of study. Now, ये जो टर्किश सोल्जर था वो पाली भाषा नहीं जानता था, इसलिए मिनहज को भी शायद पाली भाषा पता नहीं था। मिनहज ये लिख रहा है कि इख्तियार खिलजी जो इन्वेट कर रहा है वेस्ट ऑफ बिहार, बिहार का पश्चिम में यानी बिहार शरीफ का वेस्ट में एक सिटी को इन्वेट कर रहा है जो शायद एक स्टडी सेंटर है, पढ़ाई लिखाई का जगह है। इससे तो पता चलता है शायद वो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहे हैं। बट नालंदा यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड साउथ ऑफ बिहार, नॉट वेस्ट ऑफ बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी का अगर मैप आप लोग देखेंगे तो देखेंगे बिहार यानी बिहार शरीफ का दक्षिण में है, पश्चिम में नहीं है। जस्ट नाउ हमने कहा उस समय बहुत सारा मोनेस्ट्री बन गया था, तो क्या वो एग्जैक्टली नालंदा यूनिवर्सिटी है? यहां से पता नहीं चलता है। That's why Archaeological Survey of India said it is not unlikely that Nalanda being referred here is not correct. बहुत एक डिप्लोमेटिक चीज बोला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका कहना है आप यकीन के साथ नहीं कह सकते कि यह नालंदा यूनिवर्सिटी है भी नहीं भी है। दैट मीन्स यहां भी हो सकता है ना भी हो सकता है। मिनहज का ये डायरेक्शन में पता नहीं चलता है क्लियरली। But historian A. Ghosh assumption that the place of study was Udanta Mohabihar, a tantric orientation which was completely destroyed. एक इंडियन हिस्टोरियन है, उसने ये डायरेक्शन और समय को फॉलो करके उसका कहना है एक मोनेस्ट्री था बिहार का पश्चिम में यानी बिहार शरीफ का पश्चिम में, उसका नाम था उदंत महाविहार। वो एक तांत्रिक बुद्धिज्म का एक सेंटर हुआ करता था। यस, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका अभी कोई ठिकाना नहीं है। ये हो सकता है, तो घटना को एक एक करके हम लोग जस्ट दिखा रहे हैं।
The summer of 1235 saw another attack on Nalanda at the time with only two surviving monastery inhabited by 70 monks including Tibetan Dharma Sambhavi. 1235 में और भी एक टर्किश इन्वेशन हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी में और वहां का रहने वाले एक स्टूडेंट है जिसका नाम है धर्म संभावी. उसने अपना आई विटनेस लिख रहा है, यानी जो उसने देखा है वही लिख रहा है. हम लोग को इसे मानना पड़ेगा बिकॉज धर्म संभावी वॉज प्रेजेंट दैट टाइम. वो उस समय था. धर्म संभावी लिख रहा है सिर्फ 2 ही मोनेस्ट्री बचा था. This proves that only 2 monasteries were there instead of so many 11 viharas. Only 2 monasteries were there. That means others are already destroyed before Turkish invasion. So it proves the Nalanda University already on a declining trend before Turkish invasion. Turkish invasion होने के पहले ही नालंदा यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन हो चुका है. इसका मेन कारण है रॉयल पैट्रोनेज ना मिलने का. पाला डायनेस्टी यानी पाला किंग्स, जो पाल राजा हुआ करता था, वो लास्ट रॉयल हेल्प प्रोवाइड करते थे. उस समय पाला डायनेस्टी भी उसका हेल्प बंद कर दिया. तो अगर कोई रॉयल डायनेस्टी हेल्प नहीं करेगा उसका गैंजियर को मेंटेन करना फ्रीली तो संभव नहीं है. तो इससे पता चलता है कि रॉयल हेल्प, राजा और महाराजा का हेल्प खत्म हो गया था. मॉनेस्ट्री कम होना शुरू कर दिया और 2 में आके रुक गया. और कितना स्टूडेंट? 70 monks. Just see, once there was 10,000 students, now only 70. It clearly proves that it was already in a declining state. Yes, the Turkish invasion proves to be the last nail in the coffin of Nalanda University. ये सही है कि टर्किश इन्वेशन डिस्ट्रॉय का कारण है, पर वो लास्ट कारण है. पहले से वो लगभग खत्म हो गया था. Tibetan Dharma Sambhavi who left the eyewitness account. Now what he said about that? Another Tibetan text, Paksamjo, add that after the raid of Turk, the temples or the chaityas repaired. Turkish invasion का बाद फिर भी वो रिपेयर हुआ. मुद्रभद्रा the soon after named by a sage, एक सन्यासी था जिसका नाम मधुतभद्रा, उसको रिपेयर किया. Another by ministry of king of Magadh erected a temple. तो राजा का भी कुछ हेल्प मिला, एक टेम्पल बना. सिर्फ इतना ही रिपेयर हो पाया. Now there was always a mention in the history that there was a fire. So let's discuss about the fire. While the religious sermon was being delivered, the 2 tantric vikshuk, Tithik vikshuk appeared. Tithik means those who are non-Buddhist vikshuk. Some naughty young novice monk threw washing water on them. This made them very angry. This is very bad. Some monk threw washing water because they are of not same type. That's why you irritate them. They perform yogna, fire sacrifice, and threw the living residue and ashes from the sacrificial pit into the Buddhist temple. So just to spoil the Buddhist temple, they perform fire sacrifice and throw bad things, residue of those fire into the monastery. Right? तो इसमें क्या बोला गया? दो ऐसा भिक्षुक थे जो बुद्धिस्ट नहीं थे, भिक्षा मांगने आया था. वो तीर्थिक था, प्रोबेबली वो तांत्रिक था. तो कुछ मॉन्क यानी बुद्धिस्ट मॉन्क, यंग मॉन्क, जो डिसिप्लिन मॉन्क तो है ही नहीं है, उसके ऊपर पानी फेंका. इसमें वो गुस्सा हो गया. वो क्या किया? योग्य परफॉर्म किया और उस योग्य का रेसिड्यू यानी फायर वैसा कुछ, वो आग वैसा कुछ उसका लाइब्रेरी की तरफ फेंका. इसके कारण क्या हुआ? लाइब्रेरी में आग लग गया. द एशेस फ्रॉम द सैक्रिफाइसल पीट इन द बुद्धिस्ट टेम्पल, दिस पोर्स द फायर कंज्यूम द रत्नादि वन ऑफ द लाइब्रेरी. ये टिबेटियन बुद्धिस्ट लिख रहे हैं उस समय. इसको मानना पड़ेगा बिकॉज ये स्टूडेंट उस समय था, वो घटना देखा है. तो इससे कारण एक लाइब्रेरी तो जल गया. तो यह से तो इतना पता चला कि बख्तियार खिलजी इसमें इन्वॉल्व नहीं है. वो आपस का झंझट में एक लाइब्रेरी जल गया था और ये तो जायज है. इस पे राइटिंग जो है उसको हिस्टोरिक टेक्स्ट माना गया था. नाउ द लास्ट, द कंक्लूजन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. ऑल ग्रेट इंस्टीट्यूशन एंड द सिविलाइजेशंस, all great institutions, civilization rise and fall. Eventually, Nalanda University was no exception to this historical pattern.
remnants of the Nalanda University and of the Nalanda Mahavihar truly constitute the World Heritage Site, which was a place of enlightenment for the vast body of humanity. नालंदा यूनिवर्सिटी तो आज नहीं है, उसका ruins है, हम लोग जाके देख सकते हैं। फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा जगह है जो सचमुच ज्ञान का भंडार था। 700 साल तक फ्री एडुकेशन और उसी स्टैंडर्ड का एडुकेशन प्रोवाइड करना आज के लिए तो एकदम असंभव है। तो ये ऐसा था उस समय। इसी कारण नालंदा यूनिवर्सिटी को 15 जुलाई 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन नालंदा यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इन 15 July 2016. Thank you for watching our presentation. I hope you can enjoy, but there are lots of things to say about Nalanda University. One single presentation is definitely not sufficient to explain the grandeurs of the Nalanda University. I hope you will visit there. So bye bye.